Hello students, today we are going to start a new chapter of class 10th. The name of the chapter is The Sermon at Banaras. The Sermon at Banaras. Gautam Buddha is a prince. Gautam Buddha 563 BC to 483 BC was a prince. His name was Siddhartha Gautam. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. He returned after 4 years. He married a princess. They had a son. राजकुमार गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध एक राजकुमार था। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। 12 वर्ष की आयु पर उसे हिंदू पवित्र ग्रंथों में पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा गया। वो 4 वर्ष के पश्चात वापस आया। उसने एक राजकुमारी से शादी की। उनका एक लड़का हुआ। World sufferings make Gautam a beggar for enlightenment. Gautam Buddha had been shielded from the sufferings of the world. When he was 25, he saw a sick man. Then he saw an aged man, then a funeral procession. Finally, he saw a monk begging for alms. संसार के दुखों ने गौतम को ज्ञान का भिखारी बनाया। गौतम बुद्ध को संसार के दुखों से बचाया गया था। जब वो 25 वर्ष का हुआ तो उसने एक बीमार व्यक्ति देखा। फिर उसने एक वृद्ध पुरुष, फिर एक शव यात्रा देखी। अंत में उसने एक भिक्षुक को भिक्षा मांगते देखा। These made him so sad that he himself became a beggar. Then he went out to seek spiritual knowledge. इन्होंने उसे इतना उदास बना दिया कि वो स्वयं एक भिखारी बन गया। फिर वो आध्यात्मिक ज्ञान ढूंढने के लिए चला गया। Gautam Buddha gets spiritual knowledge. Gautam Buddha wandered for 7 years. Finally he sat down under a fig tree. He vowed to stay until spiritual knowledge came to him. He got it after 7 days. He named the tree as the Tree of Wisdom. गौतम बुद्ध की आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध 7 वर्ष तक घूमा। अंत में वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने वहां पर जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान न मिलेगा रुकने की कसम खाई। उसे यह 7 दिन पश्चात मिली। He began to teach. Soon he became known as the Buddha. उसने पढ़ाना आरंभ कर दिया। शीघ्र ही उसे बुद्ध के रूप में जाना गया। Buddha's first sermon. The Buddha preached his first sermon at Banaras. It is the most holy of the places on the Ganges. The sermon has 10 important points. This shows Buddha's wisdom about the suffering. बुद्ध का पहला प्रवचन। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन बनारस में दिया। यह गंगा के किनारे वाले स्थानों में सबसे पवित्र स्थान है। प्रवचन में 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यह दुखों के बारे में बुद्ध की बुद्धिमत्ता दिखाता। First, Kissa Gotami had an only son. He died. She took the dead child to her neighbors to make him alive. She asked for medicine. The people called her mad. हिंदी ट्रांसलेशन। किस्सा गौतमी का एक ही पुत्र था। वो मर गया। वो मरे हुए बच्चे को जीवित करने के लिए अपने पड़ोसियों के पास ले गई। उसने दवाई की मांग की। आदमियों ने उसे पागल कहा। Second, at last Kissa met a man. He told her that he had no medicine, but he knew a physician who could give medicine for the same. हिंदी ट्रांसलेशन। अंत में किस्सा एक व्यक्ति से मिली। उसने उसे बताया कि उसके पास कोई दवाई नहीं है, परंतु वो एक डॉक्टर को जानता था जो उसके लिए दवाई दे सकता था। Third, Kissa Gotami asked him to tell the man. He told her to go to Sakyamuni, the Buddha. हिंदी ट्रांसलेशन। किस्सा गौतमी ने उस मनुष्य के बारे में बताने के लिए कहा। उसने उसे साक्यामुनि बुद्ध के पास जाने के लिए कहा। Fourth, Kissa told the Buddha to give medicine to cure the boy. हिंदी ट्रांसलेशन। किस्सा ने बुद्ध को उसके लड़के का इलाज करने के लिए दवाई देने के लिए कहा। Fifth, the Buddha told her to bring him a handful of mustard seed. It must be from a house where no one has died. हिंदी ट्रांसलेशन। बुद्ध ने उसे मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने को कहा। ये उस घर से होने चाहिए जहां पर कोई व्यक्ति नहीं मरा हो। Sixth, Kissa Gotami went from house to house. People gave her mustard seed. She asked if no one died in the house. They told her not to remind them of the deepest grief. हिंदी ट्रांसलेशन। किस्सा गौतमी घर घर गई। व्यक्तियों ने उसे सरसों के बीज दिए।
उसने पूछा कि क्या कोई भी उस घर में नहीं मरा है। उन्होंने उसे उन्हें गहनतम दुख की याद न दिलाने के लिए कहा। 7th, Kissa Gotami could not get the seed from such a house. At last, she sat tired and hopeless at the wayside. Darkness soon fell. She saw the lights of the city. Soon the darkness of the night was everywhere. She considered the fate of men. हिंदी ट्रांसलेशन, किसी गौतमी ऐसे घर से बीज नहीं ले सकी। अंत में वो रास्ते में थकी और निराश बैठ गई। शीघ्र ही अंधेरा हो गया। उसने शहर की रोशनी देखी। शीघ्र ही रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। उसने व्यक्तियों के भाग्य के बारे में सोचा कि वो अपने दुख में वास्तव में खुदगर्ज थी। मृत्यु तो सभी के लिए समान है, फिर भी एक रास्ता है। यह मनुष्य को यदि वो सारी खुदगर्जी को छोड़ दे तो अमरता तक ले जाता है। 7th, the Buddha told her that human life was brief and painful. No one could avoid dying. All those who were born were to die one day. Young and adult all have to die like the vessels of a potter. They break after being made. हिंदी ट्रांसलेशन, बुद्ध ने उसे बताया कि मानव जीवन छोटा और कष्टदायी है। कोई भी मरने से बच नहीं सकता है। जो सभी जन्मे हैं वे एक दिन मरेंगे। युवा और वृद्ध सभी कुम्हार के बर्तनों की तरह मरेंगे। बनने के बाद वे टूटते हैं। 9th, all depart from life. A father cannot save his son. All relatives lament deeply when the dead is taken like an ox for slaughter. So the world is affected by suffering due to death and decay. The wise do not grieve as they know the truth. हिंदी ट्रांसलेशन, सभी जीवन से चले जाते हैं। एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। सभी सगे संबंधी गहराई से शोक मनाते हैं। जब मृत व्यक्ति को उस प्रकार ले जाया जाता है जैसे किसी बैल को हत्या करने के लिए ले जाया जाता है। इसलिए संसार पर मृत्यु और क्षीणता के कारण पीड़ा का प्रभाव होता है। बुद्धिमान दुख नहीं मनाते क्योंकि वे सच्चाई को जानते हैं। 10th, no one will get peace of mind from weeping or from grieving. On the contrary, his pain will be greater. His body will suffer. The dead are not saved by expressing sorrow. He who is of the lamentation and grief shall have peace of mind. One who has overcome sorrow will be free from sorrow and be blessed. हिंदी ट्रांसलेशन, किसी को भी रोने या दुख मनाने से मन की शांति नहीं मिलेगी। इसके विपरीत उसका कष्ट अधिक होगा। उसका शरीर दुख उठाएगा। मृत व्यक्तियों को दुख दिखाने से बचाया नहीं जा सकता। वो जो शोक मनाने और दुख से परे है उसे मन की शांति मिलेगी। वो व्यक्ति जिसने दुखों पर काबू पा लिया है दुख से स्वतंत्र होगा और उसे आशीर्वाद मिलेगा। हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।